Hello students, myself Rakesh Misra. As per your demand, here you have the important MCQs from the reproduction chapter. As you all know, the revision of life processes, revision of heredity, revision of our environment chapters is over. While I have taken out the long and short revision type question of some of the previously taught questions, some of the previously taught chapters, but only the reproduction chapter is still pending that need to revise. As you all know, from session 2020-21 and also the previous session 2019-20, MCQs will play important role in your marking. This is concept basis question. MCQs is the concept basis question that need to revise thoroughly, and you have a clear cut concept in order to write the exact and correct option for the each and every MCQs. In order to resolve that problems, you need to have a lot of practice over the different form of MCQs. In order to overcome that problems, here you have a series of 10 years MCQs from the reproduction. The popular lesson in your syllabus as how do organisms reproduces. This is all about matter of class 10th, but students of class 12 may help from this lesson because this may also helpful for you because you have one of another important lesson in your syllabus of biology. But the question that you will get in this video lecture is all about from class 10th and previously asked question. So don't worry, if you are having in practice, then you do not have any problem, and still you will not also get any problems in upcoming examination. But if you are far away from your practice, then you will probably suffer with the problems, and you will also get confused regarding the choice of different option, because this is multiple choice, may have the A B C D, four different kinds of option, and each option may confuse you if you have don't any idea about the particular concept that is related to the answer and that is related to the question. So you must have to do much practice over the 100 MCQs and fill in the blanks true false questions from each and every lesson before examination, because your lesson is finished before examination about 3 months, about 4 months before. So you have a lot of time in order to revise the portion of biology and different topics. Best of luck for your upcoming examination, but this video may help you for the good practice with the MCQs. So without delay timing, let back over the question number 1 and revise them thoroughly along with the probable answer. Now back to question number 1. You should focus each and every question because every question is important for you. Now you have important question from reproduction chapter. The chapter will be in your syllabus as how do organisms reproduces. This is all about matter of class 10th. In each question you will get 5 to 10 seconds for the exact answer, and you need to note down the marks. Later you can post your marks that you have attempt during the MCQs. सभी क्वेश्चन पे आपको 5 to 10 सेकेंड्स मैं दूंगा, जिसमें आपको करना क्या है कि वो जोड़ते रहने हैं, और फाइनली आप इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कुल कितने मार्क्स गेन किए. 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ठीक है. चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाई. कह रहा है कि अमीबा के लिए अगर कंडीशन फेवरेबल हो तो कैसे रिप्रोड्यूस करता है. क्वेश्चन आपके सामने है. अब आपके लिए ऑप्शन है मल्टीपल फिजन ऑप्शन ए, बाइनरी फिजन ऑप्शन बी, बडिंग ऑप्शन सी, फ्रेगमेंटेशन ऑप्शन डी. सही ऑप्शन आप बताएं और फाइनली आप इसको 1 मार्क्स जोड़ लेंगे अगर आपका आंसर सही रहेगा.
चलो टाइम आपका ओवर हो गया है। इन फेवरेबल कंडीशन अमीबा मल्टीप्लाई और अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाई द बाइनरी फिजन। अमीबा में जनरल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाइनरी फिजन के थ्रू। ठीक है, अमीबा की एक बॉडी ये डिवाइड हो जाती है दो बॉडी में, क्लियर है, न्यूक्लियस दोनों में इक्वल हो जाता है, यानी कि ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो मल्टीपल फिजन होता है। बडिंग और फ्रेगमेंटेशन अमीबा में नहीं होता है, क्लियर है। कंडीशन अगर अनफेवरेबल हो तो मल्टीपल फिजन होता है, वो भी सभी अमीबा की स्पीसीज में नहीं, केवल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में, बाकी प्लाज्मोडियम में होता है, क्लियर है ना। ये आपका ऑप्शन बी सही है। किसके लिए? ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन जो है ये बी सही है। ठीक है, जिन लोगों का ऑप्शन बी सही है वो अपना 1 मार्क्स ऐड कर लें, जिन लोगों का ऑप्शन बाकी था वो आप अपना 1 मार्क्स इसमें जोड़ेंगे नहीं, यानी कि ये ऑप्शन बी सही है, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अ फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन इन अमीबा, ईस्ट एंड स्पाइरोगाइरा इज दैट। क्या बोल रहा है कि अमीबा, ईस्ट और स्पाइरोगाइरा में कौन सा फीचर्स रिप्रोडक्शन के केस में कॉमन है? ऑप्शन क्या है? दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, दे ऑल आर यूनिसेलुलर, दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, दे ऑल आर मल्टीसेलुलर। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए, सही होगा तो 1 मार्क्स ऐड कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो 1 मार्क्स आप ऐड नहीं करेंगे। चलो आपका टाइम खत्म हो गया है। इसका सही आंसर है दे ऑल आर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ठीक है ना, सब में रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं है? दे ऑल आर यूनिसेलुलर। देखो स्पाइरोगाइरा मल्टी सेलुलर एल्गी है, ठीक है ना, स्पाइरोगाइरा क्या है? मल्टी सेलुलर एल्गी है। दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, ये भी गड़बड़ है, क्योंकि अमीबा में बाइनरी फिजन, ईस्ट में बडिंग और स्पाइरोगाइरा में फ्रेगमेंटेशन नाम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्लियर है ना। दे ऑल आर मल्टी सेलुलर, सब के सब मल्टी सेलुलर भी नहीं है, अमीबा यूनिसेलुलर है, ईस्ट यूनिसेलुलर है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, दे ऑल आर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ये कॉमन कैरेक्टर्स है, सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्लियर है ये बातें? सब में क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थर्ड पे आते हैं हम लोग। थर्ड पे द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड टू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। देखो जो 2 ऑप्शन, जो क्वेश्चन नंबर 2 था, अगर आपका ऑप्शन सही है तो 2 नंबर जोड़ लीजिए, अगर ऑप्शन आपका गलत है तो कोई नंबर नहीं जोड़ेंगे। तो आपका डिपेंड करेगा कि कितने ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू डिवाइड द सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। प्लाज्मोडियम में रिप्रोडक्शन जिसमें सेल जो है डिवाइड होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? बडिंग, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, रिडक्शन डिवीजन। चलो आपका टाइम ओवर हो गया है। देखो सही ऑप्शन है मल्टीपल फिजन, ऑप्शन बी। जिन लोगों का सही है वो सही ऑप्शन में 1 नंबर और जोड़ लेंगे, बाकी जिनका आंसर गलत है वो इसमें नहीं जोड़ेंगे। ये सब क्वेश्चन लाइव क्लासेस में बताए जा चुके हैं, क्लियर है ना, इसमें आपको पैनिक नहीं होना है। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है, अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो प्लाज्मोडियम का प्रोटोप्लाज्म एक साथ बहुत बार डिवाइड करके क्या बना लेता है? एक साथ डिवाइड करके ढेर सारा प्लाज्मोडियम की बॉडी बना लेता है, और वो फेवरेबल कंडीशन आने पे सब रिलीज्ड हो जाते हैं और सब बड़े होकर के फिर से प्लाज्मोडियम जैसा मल्टीपल फिजन करना शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। जितने लोगों के ऑप्शन बी थे वो अपना 1 मार्क्स जोड़ लेंगे, जितने लोगों के ऑप्शन बी सही नहीं थे, बडिंग था, बाइनरी फिजन था, रिडक्शन डिवीजन था, ये लोग जो है ऑप्शन में नंबर नहीं जोड़ेंगे। बडिंग किस में होता है? ईस्ट में और हाइड्रा में। बाइनरी फिजन अमीबा में। रिडक्शन डिवीजन मियोसिस को बोलते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले लिविंग बीइंग परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे आते हैं।
ब्रायोफिलम कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली बाय द, कह रहा है कि ब्रायोफिलम में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है किसके थ्रू? ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए है स्टेम, ऑप्शन बी है लीफ, ऑप्शन सी है रूट एंड ऑप्शन डी है फ्लावर। चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है वो आप पिकअप करेंगे, जो गलत है उसको पिकअप नहीं करेंगे। सही ऑप्शन अगर आपका मैच कर गया तो 1 मार्क्स जोड़ लेंगे, अदरवाइज गड़बड़। चलो आपका टाइम ओवर हो गया है। इसका सही ऑप्शन है बी, ब्रायोफिलम में रिप्रोडक्शन लीव्स के थ्रू होता है। ब्रायोफिलम का जो प्लांट्स है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ब्रायोफिलम का प्लांट्स उसमें लीव्स जो है इस तरह से होते हैं, ठीक है, और एक एक लीफ से ऐसे यहाँ पे इसको बोलते हैं नोच, वहाँ से प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसको न्यू प्लांटलेट्स बोलते हैं। और ये जो है बाद में बड़े होकर के फॉल डाउन हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ये जहाँ से प्लांट्स निकलते हैं इसको बोलते हैं NOTCH, NOTCH, नोच बोलते हैं। और इसमें ये प्लांट्स निकलना शुरू होते हैं जो बाद में फॉल डाउन होकर के इसी तरीके से न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। क्लियर है ना? तो ब्रायोफिलम में प्रोपगेशन कैसे होता है? लीफ के थ्रू होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम, कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन नए प्लांट्स जिसमें बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में न्यू प्लांट्स बनते हैं तो वो कौन से बॉडी पार्ट से बनते हैं? ऑप्शन क्या दिया है? स्टेम, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ऑप्शन बी स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, ऑप्शन सी स्टेम, रूट्स एंड फ्लावर्स एंड ऑप्शन डी स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। चारों ऑप्शन में से कौन सही है? एक आंसर आप सोच लें और अभी आंसर बताएंगे तो उससे मैच करना है। चलो आपका टाइम ओवर हो गया। आई होप आपने आंसर सही पिकअप किया होगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का डिफिनीशन ही हो जाता है द प्रोपगेशन ऑफ न्यू प्लांटलेट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स, लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी रूट, स्टेम, फ्लावर्स पार्टिसिपेट नहीं करता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। ऊपर वाले भी आंसर में भी फ्लावर है और सबसे टॉप वाला जो ऑप्शन ए है उसमें भी फ्रूट्स है। तो फ्रूट्स, फ्लावर, देखो फ्लावर सब में कॉमन, यहीं से हम ट्रिक लगा लेंगे। फ्लावर्स डी में कॉमन नहीं है, इसलिए ये डी सबसे यूनिक है और वही ऑप्शन सही होगा। कभी कभी ट्रिक से भी हम काम चला लेते हैं। देखो इसमें भी फ्लावर है, इसमें भी फ्लावर, इसमें भी फ्लावर है, तो आपके दिमाग में आइडिया आया होगा कि कहीं फ्लावर ही तो वो पनौती नहीं है, फ्लावर ही तो वह पनौती नहीं है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होने नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन आपका सही है कि फ्लावर ही वह पनौती है जिसकी वजह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं हो रहा है। क्लियर है ना? रूट, स्टेम, लीफ से होता है। टिश्यू कल्चर में किसी भी पार्ट से हम ग्रो करा सकते हैं, इवन दो फ्लावर से भी प्लांट्स ग्रो करा सकते हैं, लेकिन ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है बेटा। इसमें नेचुरली या आर्टिफिशियली वेजिटेटिव पार्ट से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, नए प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं, और वो स्टेम, रूट्स और लीफ से ही होता है। स्टेम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन रोज, ड्रम स्टिक्स, रूट्स में किस में होता है? जिंजर में, ठीक है, और स्वीट पोटैटो में, लीव्स में बिगोनिया एंड ब्रायोफिलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम लोग। इन अ पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस बाई, कह रहा है कि पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में होता है, कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए क्या है? रूट, ऑप्शन बी क्या है? लीफ, ऑप्शन सी क्या है? स्टेम ट्यूबर एंड ऑप्शन डी क्या है? ग्राफ्टिंग। सही ऑप्शन को पिक करें, एक नंबर जोड़ें और फाइनली अपना नंबर जरूर बताएं। चलो आपका टाइम ओवर हो गया है। जो पोटैटो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम ट्यूबर से करता है, यानी कि उसके पोटैटो के वो पार्ट जिसको हम खाते हैं वो एक्चुअल में स्टेम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं पोटैटो को लेकर के कि पोटैटो जो है रूट है। नहीं, पोटैटो क्या है?
पोटैटो स्टेम है, ठीक है, और उसको बोलते हैं ट्यूबर। और होता क्या पोटैटो के केस में, बहुत ध्यान से तुमको जानना भी चाहिए इसके बारे में, पोटैटो के बारे में। पोटैटो जनरली तुम्हारे घरों में होगा इस तरह से, ठीक है, उसमें बीच बीच में ऐसे कहीं कहीं देखते होगे स्ट्रक्चर दिखता होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग आई, इसको क्या बोलते हैं, EYE, आई। और यहीं से न्यू प्लांट्स ग्रो करता है। इसको जब पोटैटो बोया जाता है तो उसको काट देते हैं और एक पीस जो जिसमें आई होता है उसको ग्रो करा देते हैं, तो उससे न्यू प्लांट्स बन जाता है। तो पोटैटो क्या है, स्टेम है, जिसको बोलते हैं स्टेम ट्यूबर। और ये स्टेम ट्यूबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसके केस में, पोटैटो के केस में, स्टेम ट्यूबर, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका सी सही है। जितने लोगों का सी सही है वो अपने मार्क्स को ऐड कर लेंगे। और आगे ये फाइनली जब हम ओवरऑल अप टू 10 क्वेश्चन इसमें हम रिवाइज कराएंगे, ओवरऑल 10 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें आप लोग आउट ऑफ 10 कितना पाए हैं इसको आप लोग बताएंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन से अब तक कोई टेस्ट वेस्ट हुआ नहीं, ठीक है ना। केवल लाइव क्लास में एक दिन मैं यही क्वेश्चन सारा रिवाइज कराया था। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ गए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कह रहा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स कह रहा है, वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स डू नॉट बियर रूट्स, डू नॉट बियर बड्स, आर जेनेटिकली सिमिलर, आर जेनेटिकली डिसिमिलर। कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिस प्लांट्स में होता है उसमें रूट नहीं होता है, उसमें बर्ड्स नहीं होते हैं, वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं और जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं। इसमें सही ऑप्शन आपको पिकअप करना है। चलो आपका टाइम ओवर हो गया है। देखो जिसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो प्लांट जो है जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। जैसे मान लो कि ये प्लांट्स है, ठीक है, इससे हम एक स्टेम निकाल दिए ऐसे, इसको मैं ग्रो कराया और ये भी बड़ा होकर के प्लांट्स बनाया। अब ये प्लांट्स और ये प्लांट्स बिल्कुल जेनेटिकली सेम होंगे, क्योंकि इसका हमने एक ही पार्ट लिया था। अगर ये दो पार्ट्स होता, दो प्लांट्स होते, ठीक है, तो दो पार्ट्स दो प्लांट से लिए होते और फ्यूज करा करके ये पार्ट्स बनाते, तो इस प्लांट्स में मिक्सचर ऑफ 2 पार्ट्स हो जाता। बट यहाँ पे एक प्लांट से हमने पार्ट्स लिया और उसी से हमने न्यू प्लांट्स बनाया, तो एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सब कुछ अपने एग्जैक्ट पेरेंट्स की तरह से दिखेंगे, तो जेनेटिकली वो सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। बाकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसमें रूट्स ना हो। जैसे आप ड्रम स्टिक अगर घर में सहजन बोते हैं तो उसमें रूट्स नहीं होता है, होता है। रोज अगर बो देंगे, एक रोज का डंडा लगा देंगे, रूट्स नहीं होता है, होता है। वो डू नॉट बियर्स बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स क्या होता है, द फ्लावर, प्री मैच्योर फ्लावर बोल सकते हैं, जिसको आप लोग जो है कली बोलते हैं। तो ये बर्ड्स जो है, बर्ड्स फ्लावर बनते हैं। तो रोज का अगर प्लांट्स अगर आप एक रोज का डंडा काट के दूसरी जगह पे लगा देंगे तो क्या उसमें बर्ड्स नहीं बनेगा, फ्लावर नहीं बनेगा, बनेगा। तो ये ऑप्शन दोनों गलत हैं। जेनेटिकली सिमिलर, ये डी वाला क्या बोला, जेनेटिकली डिसिमिलर, ये तब होगा जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है ना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। स्पाइरोगाइरा रिप्रोड्यूसेस बाई, ऑप्शन ए क्या है, बडिंग, ऑप्शन बी क्या है, फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन डी क्या है, रीजनरेशन, ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, रीजनरेशन, और ऑप्शन डी क्या है, फिजन। ऑप्शन ए क्या था, बडिंग था। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बडिंग। पूछ रहा है स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है। ऑप्शन ए बडिंग, ऑप्शन बी फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन डी रीजनरेशन, ऑप्शन सी रीजनरेशन, और ऑप्शन डी फिजन। सही है आंसर बताना, स्पाइरोगाइरा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। चलो टाइम आपका ओवर हो गया है। स्पाइरोगाइरा में रीजनरेशन, स्पाइरोगाइरा में रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। होता क्या है, स्पाइरोगाइरा की बॉडी फिजिकली वाटर करंट के थ्रू छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती है, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन।
अगर ये बायोलॉजिकली टूटता, वाटर करंट से नहीं टूटता, तो इसी को रीजनरेशन बोलते हैं, लेकिन ये फिजिकली वाटर करंट से टूट रहा है तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स अलग अलग फिर से स्पाइरोगाइरा की बॉडी बना लेंगे। क्लियर है ना? तो ऑप्शन ये बी सही हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। जितने लोगों का बी सही है, क्वेश्चन नंबर ये 8 के लिए वो लोग 1 मार्क्स जोड़ लेंगे, बाकी लोग अभी गाना गाएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन राइजोपस द ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट द टिप्स कॉल्ड, कह रहा है कि राइजोपस में, ये राइजोपस का प्लांट्स है, ठीक है, इसमें कुछ राइजोपस प्लांट्स में होता है, फंगस होता है। राइजोपस के स्ट्रक्चर में एक टिप पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, उस टिप के स्पेशल स्ट्रक्चर, उस टिप बियरिंग स्पेशल स्ट्रक्चर को, यानी पूरे पूरे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें टिप दिख रहा है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन क्या है? फिलामेंट्स, ऑप्शन बी क्या है? हाइफा, ऑप्शन सी क्या है? राइजोइड्स, एंड ऑप्शन डी क्या है? रूट्स। चलो, सही आंसर है हाइफा। इसको एक्चुअल में बोलते हैं हम लोग फंगल हाइफा। क्या बोलते हैं? फंगल हाइफा। हाइफा क्या होता है? सिंगुलर, और ढेर सारे हाइफा है तो हाइफी बोलेंगे, प्लूरल, ठीक है। इस फंगल हाइफा पे ये जो पार्ट्स दिख रहा है जिसमें स्पोरेंजिया ग्रो करता है, इसी के अंदर स्पोर्स करते हैं, स्पोर्स बनते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फंगल हाइफा। और इसके अंदर के पार्ट्स को जो ग्राउंड के अंदर है, इसको बोलते हैं हम लोग राइजोइड्स। और रूट्स हायर प्लांट्स में होता है, फिलामेंट्स इसमें नहीं होता है। क्लियर है ना? तो ये क्या है आपका? हाइफा, जिसको हम लोग हाइफी बोलते हैं। फंगल हाइफा पे स्पोरेंजिया बनता है, और एक स्पोरेंजियम में बहुत सारे क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। क्लियर है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइजोपस के किस में, यानी कि बी ऑप्शन जिन लोगों का सही है वो अपने आंसर में, अपने मार्क्स में 1 मार्क्स जोड़ लेंगे। क्लियर है ना? अब 10 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का। प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। प्लांट्स जो रोज होते हैं, जैस्मिन होता है, बनाना होता है, ऑरेंज होता है, उसमें कौन सी कैपेसिटी जो है लॉस हो जाती है? सीड्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड रूट्स। आपके पास टाइम है 5 to 10 सेकेंड्स का। चलो, आपका टाइम ओवर हो गया है। फ्लावर्स, देखो जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे बनाना हो, रोज हो, जैस्मिन हो, ऑरेंज हो, ठीक है, वो एक्चुअल में अगर वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, तो उसमें सीड्स बनाने की एबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो कॉमनली, ठीक है ना, कॉमनली सीड्स बनाने की एबिलिटी अगर लॉस कर दे रहे हैं तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसलिए बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज में सीड्स होते हैं, लेकिन ऐसे ऑरेंज जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो फंक्शनल सीड्स नहीं रह जाते, इसलिए ऑरेंज के हम लोग स्टेम को ग्रो करा सकते हैं। क्लियर है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब इस 10 आउट ऑफ 10 में, 10 में आउट ऑफ 10 मैंने रिवाइज करा दिया 1 to 10। इसमें अगर आपके मार्क्स 10 है, 9 है, ठीक है, 8 है तो आप जीनियस हैं, 7 है और 6 है तो आप गुड है, 5 है तो आप एवरेज है, और बिलो 5 है तो आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है। लूज तो बोलते नहीं हम लोग, ठीक है ना, लूज़र नहीं बोलते। तो 4, 3, 2, 1 वाले थोड़ा सा एफर्ट करें, उनके भी मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो ये हमने इस वीडियो लेक्चर में 1 to 10 को रिवाइज किया, उसके आंसर को बताया, इसको आप कॉपी में लिखेंगे क्वेश्चन के साथ आंसर और एक्सप्लेनेशन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 11 to 20 को रिवाइज करेंगे। थैंक यू।